हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 10, जो कि हम करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल्स। यानी आप इसमें जो है इतिहास के चैप्टर में आप मुगल साम्राज्य के जो विस्तार के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करोगे। ये टॉपिक कई मानने में हर एक क्लास के लिए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसके सिलेबस में मुगल एम्पायर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर है। तो चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे सीबीएसई से पढ़ते हों, चाहे एनआईओएस के बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा और सोचिएगा, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईओएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we have a discussion of here establishment of the Mughal Empire. There is a most important chapter and the important point here, Humayun as a retreat and the Afghan revival of 1530 to 1540. There is a most important period time of Humayun. The Humayun here is the most important here after the death of the Babur. After the death of the Babur in 1530, his son Humayun succeed him. The Humayun is the son of Babur. The situation under the Humayun was a quite desperate, and the mainly problem faced by the Humayun were: the first problem he faced here, there is a newly concreted territory and administration was not considered. There is a most important, because the Babur is suddenly he is the bin for this administration territory. There is Humayun is not a control here. And the unlike Babur is Humayun did not be command the respect and esteem of the Mughal is nobility. And third here, the Changtai is a noble where is not be favorable inclined to about him, and the Indians noble and who had joined to the Babur as a service, restricted the Mughals at the Humayun's as a accession, and also is a confronted the is a hostility of the Afghan, mainly of Sher Shah in a Bihar on hand, and the Bahadur Shah, the ruler of Gujarat, on the other. There is a most important point here. And the last here is the fifth point. As per the Chimur, traditionally Humayun had to be share power with his brother. The newly established Mughal Empire had two centers of power, Humayun in their control of Delhi, Agra and central India, while his brother Kamran had Afghanistan and Punjab under him. There is a most important decision here of Humayun. Humayun felt that is Afghan where is a bigger threat. He wanted to avoid a combined opposition of Afghan from the east and west. At that time, the Bahadur Shah had occupied the Vishra, Adrescence, Ujjain and Girgaon, and was considering his power. While the Humayun was a sojourner in the east, Bahadur Shah has started to expanding towards Malwa and the Rajputanas. In such a situation, Humayun was forced to rush back to the Agra. The rush back to the Agra here, 1532 to 33. Continuing there is the expansion to policy, Bahadur Shah attacked the Chittor in 1534. Chittor had strategic advantage as it could be provide a strong base. It would have to help his expansion in a
Rajasthan is particularly toward to the Ajmer, Nagaur and Ratnabhor. Humayun as a capture is a Mandul and Kampan. There is because they thought that from here he can back up Bahadur Shah return to the Gujarat. The Humayun has a longer absence from the Agra, resulting in the rebellions in the Dhobs and Agra, and he had to the rush back. Mandu was not left under the charge of Mirza Askewe. There is a brother of Humayun. And during this period, when Humayun was busy in Gujarat to check off the Bahadur Shah, Sher Shah started the concentrating himself in the Bihar and Bengal. Here the most important rise of Sher Shah Suri, for who later come be called Sher Khan and consequently is a Sher Shah, was son of a Jagirdar under the kingdoms of Janpur. His father Hasan Khan Sur held to the Jagir of their Shararams in Bihar. During the ruler of the Lodi, Sher Shah is helped in father in administration of his Jagir. Later he developed to the difference with the father and left him. He served under Afghan noble. After the death of his father in 1524, he was given his father as a Jagir by Ibrahim Lodi. He had to enter into the confess with his family to take a position of their Jagir. He very effectively is managed the Jagir of his father. He also acquired to the great military and administrative skill. His capability is made him to be leader of Afghans. He gradually increasing his influence and defeated to the Sultan Muhammad Shah of Bengal. He emerged as the most powerful military commander in the 10 provinces. Sher Shah is consolidating his position in Bihar. He had to be entered into a number of conflicts with the prominent Afghan noble in Bihar and rule of the Bengal. He finally succeeded in establishing himself as the most powerful Afghan chief in eastern India. So here is the most important here map empire of Sher Shah Suri. There is a dot shapes here of the line shape is the most important empire of Sher Shah Suri is AD 1540 to 45 AD. Here 5 years is the most important. Ludhiana, Jalandhar, Multan, Lahore, Delhi, Ambala, Jodhpur, Chittor, Mandur, Agra, Kanpur, Kannauj, Banaras and etc. There is the most important here a part of empire of Sher Shah Suri. The maximum area is the bond for here the Sher Shah Suri in showing this map. There is a most important. Sher Shah could extract quite a wealth from Bengal, which is help him to be rise a bigger army. Now he started to attacking Mughal territories of Banaras and belonging to the Humayun. There is a most important here Banaras and the other side. Humayun was quite suspicious of Sher Shah as a ambition, but failed to estimate of capability. He asked his governor of Jaunpur is a Hindus back to check the movement of Sher Shah. Mean, will the Sher Shah is a capture of Gyur is a 5038, the capital of Bengal. Well, the Humayus was moving to about the Bengal. Sher Shah Shuris took control of the route and Agra, making a communication difficult for Humayun. There is a most important point here. There is a Humayun was moving to about to Bengal, and Sher Shah took a control of the route to Agra as a making to communication is difficult for the Humayun. On the other hand, the Hindal Mirza is a brother of Humayun who was supposed to provide supply for his army. Declared he is the independent. Now the Humayun decided to return to the Chenor. And when he reached to the Chanusa is 1539. He is in compare on the western side of the river Karamsa. Sher Shah attacked the Humayun at the bank of river and defeated him. Sher Shah declared himself as the independent king. Humayun could escape, but most of his army was a destroyer. With the difficulty he could be reached the Agra, his brother Kararam is moved out of the Agra to about to Lahore, leaving Humayun with a small force.
The Sher Shah is now moved toward to Agra. Humayun also is come forward with his army, and his armies of two clash in a Kannauj. Humayun was defeated badly in the Battle of Kannauj is a 1540। हुमायूं का पीछे हटना और अफगानों का जो पुण्य जागरण जो कि 1530 से लेकर 1540 ईस्वी पर शासन का स्थापना किया। कहते हैं बाबर की मृत्यु के उपरांत हुमायूं जो था उत्तराधिकारी बना, और आपको पता है बाबर ने अपने सैनिकों की सहायता से जो है इब्राहिम लोदी को हरा के जो है पानीपत के युद्ध में हरा के विजय हासिल किया, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन कहते हैं हुमायूं के लिए ये सब संभालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमने भारत का इतिहास पढ़ा और जाना है कि भारत में आए दिन जो है कोई ना कोई अटैक करके जो है अपना अधिकार स्थापित करने के लिए सक्षम था। और ये भी हम नहीं कह सकते कि भारत के जो जितने भी थे यहाँ पर राजा वो कमज़ोर थे, वो भी बहुत काफ़ी शक्तिशाली थे। लेकिन कहते हैं इसमें जो था एक बुराई थी कि वो एक दूसरे को देख नहीं चाहते थे और अपना साम्राज्य को खुद ही विनाश के कगार पे ला खड़ा किए थे। तो उसके समय जब बाबर की मृत्यु हो गई तो हुमायूं का उत्तराधिकारी के रूप में था, और उसके समक्ष बहुत बड़ी चुनौती थी कि इन जीते हुए प्रदेशों को जो है संगठित करना। कहते हुमायूं के अधीन परिस्थिति काफ़ी निराशाजनक थी और उसके लिए जो है संभालना बहुत ही दुष्कर कार्य था, बहुत ही मुश्किल कार्य था। हुमायूं ने जिन समस्याओं का सामना किया वो कुछ इस प्रकार यहाँ पर दी गई है, जो जान के आप भी हैरान हो गए कि हुमायूं के लिए साम्राज्य को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। सबसे पहली बात तो यही यहाँ पर आती है कि जीते गए प्रदेशों को प्रशासन संगठित नहीं था, यानी जो है बाबर ने जीता था उसको संगठित नहीं किया गया था। अभी वहाँ पर रूल रेगुलेशन नहीं लागू किए गए थे। बाबर की तरह हुमायूं को उतना सम्मान और मुगलों को अभिजात वर्ग से इतनी इज्जत नहीं मिल पाई थी जितनी अब की बाबर को मिला हुआ था। हुमायूं बेशक उसका पुत्र था, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं थी, इतना लोगों को समर्थन नहीं प्राप्त था, इसलिए इसको जो है संगठित करना बहुत ही दुष्कर कार्य लग रहा था। उसके पश्चात देखिए हम तीसरी पॉइंट पे नज़र करें तो कहते हैं चितगाई अभिजात वर्ग उसके पक्ष में नहीं था, यानी चितगाई जो अभिजात वर्ग था वो उसके पक्ष में नहीं था, और भारतीय कुलीन जिन्होंने बाबर को सेवा ग्रहण की थी उन्होंने हुमायूं को राज सिंहासन मिलने पर मुगलों के साथ छोड़ दिया था। यानी जब हुमायूं को राज सिंहासन मिला था तो उन्होंने मुगलों को जो है साथ देना बिल्कुल ही नाजायज़ समझा। उसे अफ़गानियों के दुश्मनी का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि अफ़गानी भी भारत पे नज़र गड़ाए हुए थे, और मुख्यतः बिहार में एक तरफ शेर खां तो दूसरी तरफ जो है गुजरात का शासक बहादुर शाह, और इन दोनों परिस्थिति में जो है हुमायूं के लिए शासन करना बहुत ही आसान नहीं था। यानी कह सकते हो कि हुमायूं के लिए जो ताज थी वो कांटों से भरी हुई थी। तैमूरी परंपराओं के अनुसार उसे अपने साथियों के साथ बांटकर शक्तियों पर अधिकार पाना था। बनस्थापित मुगल साम्राज्य दो केंद्र थे, दिल्ली और आगरा। मध्य भारत का नियंत्रण हुमायूं के हाथों में था, तो अफगानिस्तान और पंजाब उसके भाई जो है कामरान के अधीन था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि कामरान जो था अपने एक क्षेत्र को जो अफगान और पंजाब को नियंत्रण कर रहा था, तो हुमायूं जो था दिल्ली और आगरा को नियंत्रण में रखा था। हुमायूं ने महसूस किया कि अफ़गानी उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा थे, और थे भी, इसमें कोई दो राय नहीं था कि अफ़गानी जो थे बहुत बड़ा खतरा था हुमायूं के लिए। अब वह पूर्व और पश्चिम से अफ़गानियों को जो है संयुक्त जो है विरोधियों से बचाना चाहता था। उस समय तक जो है बहादुर शाह ने विलास और सराय और जैन और जागरोन पर जो है कब्जा कर लिया था, और वह अपनी शक्ति का संयोजन कर रहा था। जबकि हुमायूं पूर्व में चुनार में घेराबंदी कर रहा था, वहीं बहादुर शाह मलवा और राजपूताना की तरफ पांव फैला रहा था। तो बहुत काफ़ी परिस्थिति जो थी बहुत दुर्लभ हो गई थी, बहुत परिस्थिति संवेदनशील हो गई थी इस समय। इन परिस्थितियों में हुमायूं का आगरा वापस आना पड़ा, और कहते हैं 1532 से 33 में ये रिटर्न हुआ। विस्तार की नीति की जारी रखते हुए बहादुर शाह ने 1534 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि जो यहाँ पर बहादुर शाह का नीति था वो विस्तार करना था अपने राज्य को। और यहाँ पर जब यहाँ पर बाबर की मृत्यु हो गई तो उसके लिए जो था बहुत काफ़ी आसान परिस्थिति बन गई थी। युद्ध नीति की दृष्टि से चित्तौड़ एक मजबूत आधार स्थल होने के फायदा जो है उपलब्ध करा सकता था। इससे उसे राजस्थान, विशेष रूप से अजमेर, नागौर और रणभोर की ओर बढ़ने में मदद मिल सकती थी। हुमायूं ने जो है मांडू पर जीत हासिल कर ली और यहीं पर जो है शिविर भी बना लिया, क्योंकि उसने सोचा कि यहाँ रहकर वह बहादुर शाह की गुजरात आपसी के रास्ते में रुकावट बन सकता है,
जो कि बहुत बड़ी नीति के अंतर्गत आया था। आगरा से लंबी अवधि तक उसके अनुपस्थिति रहने के कारण दोआब और आगरा में बगावत शुरू हो गई और उसे तुरंत वापस लौटना पड़ गया। कहते जितना अगर मालिक अगर अपने जागीर से दूर रहेंगे तो जनरल सी बात है वहाँ के जो लोग हैं अब संघर्ष करना शुरू कर देंगे, जो कि हुमायूं के साथ यहाँ पर हुआ। मांडू का नियंत्रण अब हुमायूं के भाई मिर्जा अस्कारी की जो संपत्ति में छोड़ दिया गया था, जिस अवधि के दौरान हुमायूं गुजरात में बहादुर शाह की गतिविधियों ने ढक रहा था। यानी जो है यहाँ पर हुमायूं ने जो है अपने भाई मिर्जा अस्कारी को जो है सारी संपत्ति और सारे जो है उत्तराधिकारी बना के गया हुआ था। तो कहते हैं उस अवधि में शेर शाह ने बंगाल और बिहार में अपनी दृढ़ कर चुका था, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। अगर हम बात करें शेर शाह सूरी की उदय, आखिर शेर शाह सूरी था कौन और उसका उदय कैसे हुआ? शेर शाह सूरी के बारे में आप क्या जानती हो? कहते हैं अफरीदाबाद में जिसे शेर खां और अंत में इसको शेर शाह कहा जाने लगा था। कहते हैं जौनपुर साम्राज्य के अधीन एक जागीरदार का पुत्र था, यानी शेर शाह सूरी एक जागीरदार का पुत्र मात्र था। उसके पिता हसन खां था, सुर था, यानी हसन खान सुर था। लोधी शासन के अधीन बिहार में सासाराम के जागीरदार था। यानी जब जो है लोधी वंश जो कार्यरत थी जो लोधी वंश का जो है साम्राज्य था, उस समय सिर्फ शेर शाह सूरी के पिता जो था एक सासाराम के जागीरदार था सिर्फ, यानी एक क्षेत्र का सिर्फ जागीरदार था। शेर शाह अपने पिता के जागीरों के प्रशासनिक कार्य में उसकी मदद करते थे। यानी देखा जाए तो शेर शाह अपने पिता के हर संभव कोशिश करते थे कार्य करने में। बाद में उसके अपने पिता के संबंध में मतभेद हो गया, यानी पिता और जो है बेटे में लड़ाई हो गया और वह उनके छोड़कर चला गया। यानी शेर शाह वहाँ से चला गया। उसने अफगानी कुलीनों के अधीन सेवा करनी शुरू कर दी और 1524 में उसके पिता की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी ने उसे उसके पिता की जागीर दे दी। यानी जब 1524 में पिता की मृत्यु हुई तो इब्राहिम लोदी ने उसको जो है उसके पिता के जागीर आपस लौटा दिया शेर शाह को। जहांगीर का कब्जा लेने के लिए उसे अपने परिवार के साथ लड़ाई भी करनी पड़ी। यानी परिवार में भी और व्यक्ति थे जो है शेर शाह से लड़ाई किया। उसने अपने पिता की जागीर को बहुत ही प्रभावी ढंग से व्यवस्थित किया और उसने सैनिक और प्रशासनिक कार्य में बहुत जो है दृढ़ता हासिल कर ली। यानी छोटे से जागीर में उसने जो है बहुत बड़ी जागीर की जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो यही बात त्रिपाण सेंटर भी कहता है कि आपने इस छोटे से पॉइंटों को, छोटे से चैप्टरों को आप इतना अच्छे समझो कि इससे जो है आपका जो है माइंड का विस्तार हो और आप हर सक्षम जो है इसे लिखने के लिए कैपेबल हो जाओ, जैसे कि यहाँ पर शेर शाह सूरी ने किया। यानी शेर शाह सूरी की जागीर बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कार्यकुशलता दिखाई कि उस क्षेत्र में जो है काफ़ी समृद्धि आ गई। उसकी योग्यता ने उसे अफगानों का नेता बना दिया। देखिए कहते हैं किसी व्यक्ति की अगर योग्यता अच्छी हो, चाहे वो कोई भी वंश का हो, किसी भी जाति का हो, वो जो है हमेशा नेता ही कहलाता है, क्योंकि योग्यता जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। और ये जो है कार्यकुशलता की योग्यता आपको समझने और पढ़ा लिखा होने से ही आपके अंदर विकसित होगी। कहते हैं धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता गया और बंगाल के जो है महमूद शाह को हरा दिया। अब कहते हैं जब ये अपने क्षेत्र में पावरफुल बन गया तो इसकी जो महत्वाकांक्षा दूसरे राज्यों पर भी नज़र चली गई। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत तब हुआ जब बंगाल के महमूद शाह को उसने हराकर वहाँ पर राज्य की स्थापना किया। पूर्वी प्रदेशों में बहुत ही शक्तिशाली सैनिक कमांडर बनकर उभरा। यानी पूर्वी प्रदेश में देखा जाए तो बहुत बड़ा विशाल शक्तिशाली कमांडर बन गया वो। कहते हैं कमांडर बन गया और शेर शाह बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करता रहा। उसे बिहार में कई प्रमुख अफगानी अभिजातों और बंगाल के शासक से अनेक लड़ाई लड़नी पड़ी और अंत में वह पूर्वी भारत में खुद को अत्यंत शक्तिशाली अफगानी प्रमुख के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ। तो कहते हैं इसने जो है तिनके से जो है पूरे सोने तक की सफ़र किया। यानी कहा जाए छोटे से जागीरदार से जो उसने शुरुआत किया वो उसको साम्राज्य तक पहुंचा दिया। तो यही बात यहाँ रखता है, कोई ये दायित्व नहीं रखती है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर करना है तो कहीं से स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा और यही शेर शाह सूरी ने किया। कहते हैं पिता के छोड़ा हुआ थोड़ी सी जागीर ने उसको जो है राजा बना के रख दिया, क्योंकि उसके कार्य प्रबंधन इतनी सशक्त थी, इतने प्रभावशाली थी कि वहाँ के लोग खुश हो गए। और देखते देखते ये बात जो है हर एक क्षेत्र में फैल गया और फैलने के कारण क्या हुआ, सभी लोग जो थे उसके राज्य में सम्मिलित होना चाहते थे और उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी राज्य का विस्तार हुआ।
और कहते हैं जब राज्य का विस्तार हुआ तो लोगों ने उसका समर्थन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो जो था कमांडर बन गया सैनिक का। और जब कमांडर बन गया तो वो जो है अपनी योग्यता का परिचय जो है बिहार क्षेत्र में दे के वहाँ के राज्य को जो है अपने अधिकार में कर लिया। तो ये जो था शेरशाह सूरी की बहुत महत्वपूर्ण विजय थी, जो कि बहुत जरूरी भी था। शेरशाह खुद को एक जो है निर्विवाद अफगानी नेता के रूप में स्थापित करना चाहता था और उसने बंगाली सेना पर आक्रमण भी किया और जो है सूरजगढ़ की लड़ाई में उसको हरा दिया। शेरशाह ने बंगाल में बहुत बड़ी धन संपदा हासिल की, जिसने उसे एक बड़ा सैन्य बल खड़ा करने में काफ़ी मदद किया। कहते हैं कि जो जिसको मेहनत की आदत लग जाती है उसको जो है चारों तरफ की दिशाएं भी उसको जो है पक्ष में हो जाती है। अब उसने बनारस और उससे परे के मुगलों प्रदेशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब देखिए कहाँ पर एक जागीर का जो है बच्चा और कहाँ पर जो है अब वो मुगलों से वो दो चार हाथ करने लग गया, यानी बनारस मुगलों प्रदेशों पर आक्रमण करना उसका स्वाभाविक बात बन गई। हुमायूं को शेरशाह की महत्वाकांक्षा का संदेह तो था ही, परंतु वह उसकी क्षमताओं का अनुमान नहीं लगा पाया, क्योंकि आप भी जानते हो कि ये एक जो था जागीरदार का पुत्र था, यानी उसकी इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। इसलिए हुमायूं भी सोचता था कि इसके पास क्या क्षमता होगा, क्या पावर होगी, क्या शक्ति होगी। लेकिन हुमायूं ने सबसे बड़ी गलती कर ली कि उसकी क्षमताओं का अनुमान नहीं लगा पाया और उसने अपने जौनपुर के गवर्नर जो है हिंदू बेग से कहा कि वह शेरशाह की गतिविधियों पर नज़र रखे। इस बीच शेरशाह ने 1538 ईस्वी में बंगाल की राजधानी गौर पर जो है जीत हासिल कर ली और जब हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ रहा था तो शेरशाह ने आगरा के मार्ग पर नियंत्रण कर लिया और हुमायूं के लिए संचार संबंधी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर दिया। दूसरी तरफ हुमायूं के भाई हिंदल मिर्जा ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया, यानी अपनों ने भी इसको जो है हुमायूं को धोखा दिया। अब हुमायूं ने जो है चुनार वापस लौटने का फैसला कर लिया, जैसे उसकी सेना के लिए जो सरदर्द की पूर्ति करनी थी, यानी रसदर्द की पूर्ति करना जरूरी था। जब वो चौसा पहुंचा तो 1539 तो उसने कमनासा नदी के पश्चिमी किनारों पर शिविर बनाया। शेरशाह ने नदी के किनारे जाकर हुमायूं पर आक्रमण करके उसे हरा दिया। यानी देखा जाए तो शेरशाह ने नदी के किनारे जाकर हुमायूं पर आक्रमण करके उसे हरा दिया और शेरशाह ने खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। हुमायूं बच सकता था, परंतु उसकी अधिकांश सेना नष्ट हो चुकी थी और वह बहुत मुश्किल से वह आगरा पहुंच पाया। उसका भाई कमरान जो था आगरा से निकलकर लाहौर की तरफ बढ़ गया था और हुमायूं बहुत थोड़ी सी सेना के साथ अकेला रह गया था। अब शेरशाह भी आगरा की तरफ बढ़ने लगा और हुमायूं भी अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ने लगा। अब दोनों सेनाओं के कन्नौज में टकराव हुआ और कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं की बुरी तरह से हार हुई, यानी 1540 में वो हार गया। तो इसी के साथ जो है हुमायूं की कितनी महत्वपूर्ण जो थी स्टोरी थी शेरशाह के साथ जुड़ी हुई थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से भी। यहाँ पर हमने हुमायूं के जो है जीवन के बारे में भी जाना और समझने की कोशिश किया, प्लस शेरशाह ने जो महत्वपूर्ण अपना कदम उठाया था उसके विषय में भी हमने जाना और किस प्रकार जो है यहाँ पर शेरशाह सूरी ने अपने राज्य को फतेह की उसके विषय में भी हमने विस्तार पूर्वक जाना। इसका जो है शेरशाह सूरी के जो है वंश के बारे में, उसके जो है विजय के बारे में आगे भी है, तो आप इसी तरह तिरपान सेंटर साथ बने रहिए और आगे का वीडियो जरूर देखिए, जहां पर हम शेरशाह सूरी के विषय में और भी चर्चा करेंगे। हम अगले वीडियो मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ध्यान रखना और ध्यान ये भी रखना है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आपने तिरपान सेंटर का हेल्प करना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूरी है।